Okay. Oh, okay. So I should ask him. So first of all, Dr. Jabra, we are welcoming you in the city of dreams, Mumbai. Thank you. And I'm just getting nostalgic because we have done lots of press conferences in US, in lots of cities like Los Angeles, San Francisco, Dallas. Now you're in Mumbai. So first of all, how is the experience? Wonderful. First of all, hello to all the Mumbaiites, and I'm so glad, so excited. The air is so exciting. I'm loving it. सर सबसे पहले जानना चाहेंगे हम ये जानना चाहेंगे आप जो इंडिया आए हैं हाँ। आप क्या मोटो है इंडिया वो का, second question, वो second हाँ, question. वो तो वो आप क्वेश्चन बोलते पूछ हैं, रहे आप बोलते हैं. हैं. So अच्छा, अच्छा. हाँ. Then everybody wants to know that Dr. Jabra is in Mumbai. Right. So sir, what is the main reason behind that? देखिए, मुंबई as is known for Bollywood, हमने फेस्टिवल ऑफ ग्लोब जो शुरू किया है. This is something which is totally global, from Hollywood, Bollywood, Chinawood, Nollywood. We are putting everybody together here, and they are all going to be at a global platform in Silicon Valley. So I'm here to invite everybody, meet everybody, so that we can get it done at a global level. Like these days, the globalization is happening. The world is so small, and we want to make it even smaller by creating platforms like Festival of Globe, which we call FOG. Actually, what happened last time, everybody seen you on the television and the net, but this time they are looking you, feeling you live in Mumbai, so that is the privilege. Dr. Saab, last year it was a successful program. Lots of celebrities from all over the world were in the Silicon Valley. Right. So what is the basic preparation for 2016? Absolutely, everything has to get better and bigger. We had 103 celebrities from Hollywood, Bollywood, China, Middle East, Brazil, and everybody else. This year, besides just doing a film festival, our film awards, we're also doing a music fest, which is going to be huge, where the world-renowned stars like Chris Brown and many people are going to be joining us. We're also doing something called Fog Idol, where one of our South Indian singer, P. Sushila Garu, she's going to be getting a Lifetime Achievement Award. So we're starting that. We're also doing something called Fog Summit, where the Silicon Valley will talk about the innovation, technology, and cinema. And we're going to be doing that as well. So there are a lot of new things besides the Mela and the parade, where 2 lakhs people came. This year we are expecting doubling up to 4 lakhs. Oh, wow. So it's going to be huge. So it is a comprehensive platform for the culture, film, celebrities, and all over, you can say, all kind of festivals. Absolutely. All kind of arts, the film arts, the folk arts, performing arts, everything put together, and we'll have it there. Sir, one personal question. You are a doctor, but you are the doctor of society. Now you become the doctor of society, the doctor of hearts. What is this? How this magic comes? That's a God-gifted thing. I love that. This is my passion. Of course, medicine is my first love, but getting all there, in whether it's entertainment, whether it's social entrepreneurship, whether it's a cultural empowerment, I'm there, and I'm loving it. There's only one life, and we can do as much as we can. It's a wonderful feeling. Thanks a lot, Dr. Japra, and from my Bollywood fraternity, I'm welcoming you again, and it's our good luck that you are here, and wish you all the very best. Wish you all the very best for the FOG 2016. I know it is going to rock. Absolutely, right there in Silicon Valley, in San Francisco, California, beautiful weather. It's going to be a beautiful platform for every one of you. So whoever is watching, please come. It's going to be in August 10th to 14th in 2016, and love to see you over there. Thank you so much, and enjoy the evening. Absolutely, thank you. The FOG party is basically, it's a launch party for the Festival of Globe. That is what FOG stands for. पिछले साल ये फेस्टिवल शुरू हुआ था सिलिकॉन वैली में, जो कि कैलिफोर्निया में है, अमेरिका का रिचेस्ट शहर, रिचेस्ट टाउन, जहाँ पे आईटी दुनिया के सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स मौजूद हैं. और वहाँ के कुछ इंडियंस जो हैं, मतलब डॉक्टर्स और आईटी पीपल और पॉलिटिशियंस, जितनी भी वहाँ की बड़ी बड़ी इंडियन कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने तय किया कि क्यों ना हम हमारी पूरी कम्युनिटी को जोड़ें एक फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से. तो उन्होंने ये फेस्टिवल लॉन्च किया. 2015 में ये फेस्टिवल बहुत सक्सेसफुल रहा, और इस साल उन्होंने तय किया कि इस फेस्टिवल की हम एक लॉन्च पार्टी करेंगे मुंबई में जनवरी में, क्योंकि फेस्टिवल अगस्त में है और हम चाहते हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारे बारे में जाने. इस साल वही होगा जो पिछले साल, बस और बड़ा और बड़ा और बड़ा. मतलब और फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बेहतरीन फिल्में, बहुत इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स,
पिछले साल फिजी और नेपाल से हमारे पास आए थे। इस साल हम कोशिश करेंगे कि 10-15 अलग अलग कंट्रियों से हमारे पास लोग आएँ। पिछले साल हमारे परेड में 1.5 लाख लोग थे। इस साल हम कोशिश करेंगे 2.5 लाख लोग हों, ज़्यादा फिल्में हों और हर तरह से ये इंडिया के कोने कोने में फॉग का प्रचार हो। जी, मेरी नेक्स्ट फिल्म जो रिलीज़ हो रही है उसका नाम है निर्जा। वो रिलीज़ हो रही है 19 फरवरी को। सोनम कपूर इस फिल्म में हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रही हैं एक एयर होस्टेस की। फॉक्स इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और मैं उस फिल्म में एक अच्छा सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ। करंटली आई एम शूटिंग अ फिल्म कॉल्ड इरादा, जिस वजह से मेरी जो आप दाढ़ी देख रहे हैं, आई एम प्लेइंग अ सरदार विथ नसीर साहब एंड अरशद वारसी। वो शूटिंग इन पंजाब। आई बेसिकली कम डाउन फॉर द फॉग पार्टी। और मेरी एक फिल्म है 19 जनवरी, जो कि कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडितों की जो जंग है उसकी कहानी है। बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है जो फेस्टिवल्स में जाना शुरू होगी और इस फेस्टिवल में मेरे साथ दीप्ति नवल है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये सिलिकॉन वैली है जो काफ़ी वेल नोन है और जो फॉग करके है वो काफ़ी वेल नोन है और जाबरा साहब ने हमेशा इसको इंडिया में रूल करने की कोशिश की और बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग साथ में उनके साथ में जुड़े हुए हैं और आज की ये जो इवनिंग है हम उनके साथ बिता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा फेस्टिवल जो होता है वो हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए जब भी कोई स्टेप उठाया जाता है वन ऑफ द बेस्ट स्टेप कहा जाता है और बाहर से जो फिल्म आती है, आउट ऑफ इंडिया से जो अलग अलग कंट्रीज से फिल्म आती है, हमारी फिल्म जब बाहर जाती है तो एक ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और हमेशा ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए और ऐसे फिल्म फेस्टिवल को प्रमोट करना चाहिए और हम लोग हमेशा ऐसी चीज़ों को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे एंड वी विल डेफिनेटली सपोर्ट दैम। मेरी एक फिल्म आ रही है दो लफंगे, जिसमें काफ़ी वेल नोन स्टार्स है और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ CCL। मैं अभी एक CCL खेल रहा हूँ फ्रॉम मुंबई हीरोज़ और वो एवरी आर्टिस्ट ड्रीम इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ मुंबई हीरोज़। तो मैं अभी मुंबई हीरोज़ का मैच खेलने जा रहा हूँ अहमदाबाद में, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा और इट इज़ सबसे पहली मेरी मुहिम यही है। इस साल की 2016 का जो स्टार्ट हुआ है वो CCL से हुआ है और मेरी एक फिल्म आ रही है जो अगस्त में रिलीज़ होगी, उसका नाम है दो लफंगे। सर, फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक्टर्सों के लिए या फिल्म्स के लिए इसमें सीमित नहीं होती है। काफ़ी लोग होते हैं, मैं तो कहता हूं कि ना ओनली म्यूजिक के लिए किया जाए लेकिन टेक्नीशियंसों के लिए भी ये सारी चीज़ें की जाए। तो ये जो स्टेप उठाया गया है वो अमेजिंग है। वी शुड ऑलवेज प्रमोट दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल और ये बहुत अच्छी बात है। थैंक्स अमित। थैंक्स सर, सबसे पहले तो आपको आप हमने सुना एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा पहले बताइए। सब आपसे बहुत क्यूरियसली जानना चाहते हैं कि आपका नया जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। राइट नाउ मैं एक कॉमेडी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि मेरी लास्ट फिल्म बरखा से बिल्कुल ही अलग है एंड इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल बॉलीवुड मसाला फिल्म। तो अभी स्क्रिप्ट चल रही है, होपफुली वो फिनिश होती है तो मैं आप सबको न्यूज़ दूंगा। डॉक्टर जाफरान जिस मुहिम के साथ यहाँ पर आए हैं, इंडिया आए हैं अपने फेस्टिवल को लेकर, उससे आपका क्या कहना है, उसके ऊपर क्या टीका? डॉक्टर उमेश जाफरा जो है बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, बहुत ही स्ट्रांग है और सबसे अच्छी बात ये है कि उनको पता है कि उनको क्या अचीव करना है, उनका टारगेट क्या है। एंड 2015 में पिछले साल जो इनका फेस्टिवल हुआ था काफ़ी कामयाब रहा एंड दैट्स व्हाई दे सेलिब्रेटिंग दिस और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। होपफुली कि दिस साल भी ये और ज़्यादा आगे बढ़े एंड दिस इवेंट दिस फेस्टिवल बिकम्स अ सक्सेस। जिस तरीके से रिकॉग्निशन मिल रहा है फिल्म फेस्टिवल्स में इंडियन फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को, अभी आपके द्वारा सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस को मिलेगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये अच्छी बात है कि इंटरनेशनली इंडियन फिल्म मेकर्स, फिल्म और प्रोड्यूसर्स को रिकग्निशन मिल रहा है। अब अगर सिंगर्स को भी मिलेगा तो इट इज़ अ बून फॉर द इंडस्ट्री के उनको भी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले। जैसे हमारे यहाँ इंटरनेशनल सिंगर्स को पहचाना जाता है, माना जाता है, तो यहाँ के इंडियन सिंगर्स को भी एक मुकाम मिलेगा। तो इट इज़ गुड फॉर ऑल, गुड फॉर बॉलीवुड। सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जाफरा एक मुहिम के साथ इंडिया आए हैं अपने फिल्म फेस्टिवल को लेकर, उसके बारे में आप क्या? Well, I wish Dr. Jafra all the best
and Fog is considered one of the premium film festivals in Silicon Valley and has been based abroad for many years. I'm very happy they've come to India. और Fog जो है मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्सीलेंस सेलिब्रेट करता है and Beauty Polish, my company, is proud to associate with them for this festival to be their beauty partner. बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं सीरियल्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो आपसे इस बार एक इनिशिएटिव उठाया है फिल्म फेस्टिवल के साथ, इस बार सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर, बैकग्राउंड स्कोर्स को भी रिकग्नाइजेशन मिलेगा फिल्म फेस्टिवल में, तो उसके लिए आपका क्या कहना है सिंपल? No, I think it's a very positive move and जो लोग पर्दे के पीछे हैं उनको भी सामने आना चाहिए और हम इस इनिशिएटिव को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि जो लोग की आवाज़ सुनाई देती है वो उनके चेहरे भी सामने आए, जो लोग मेरे ख्याल से उनका मकसद जो है बहुत नेक है और ए वेरी नोबल थॉट कि जो टैलेंट है उन पे एनकरेजमेंट देना विद अवार्ड्स। आखिर में एक क्रिएटिव पर्सन को पैसे से ज़्यादा रिकॉग्निशन की ज़रूरत है उनके एफर्ट्स और टैलेंट की, और ये प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है थ्रू फॉग। सर, आपका जो एसोसिएशन है आज के इस इवेंट के साथ, आप अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए कि क्या है, क्या करता है ब्यूटी पॉलिश जो है इट कीप्स एंड टेक्स ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्यूटी इंडस्ट्री अंडर वन रूफ। मतलब भले प्रोफेशनल हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, स्टाइलिस्ट हो, ब्रांड हो, मैन्युफैक्चरर हो, ब्यूटी एंथुजियास्ट हो, ब्लॉगर हो, सारे को हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं और सबको एक दूसरे से मिलाते हैं ऑनलाइन। जो आज की तारीख में आप जानते हैं डिजिटल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है छा गई हर जगह एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ द फ्यूचर। तो ब्यूटी पॉलिश यही करता है कि सबको एक जगह ला के मिला दे, सबका व्यवहार जो है ट्रेड संभव करे, जो आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। यही रीजन का एसोसिएट होने का जो फेस्टिवल्स है वो भी तो एक प्रकार से यही करता है कि अलग अलग लोगों को एक साथ एक मंच पे लेकर आता है, जो आप लोग अपने ब्रांड के साथ। बिल्कुल, हमारे मकसद जो है बहुत कॉमन है फॉग के साथ। फॉग भी एक्सीलेंस सेलिब्रेट करती है, हम भी एक्सीलेंस सेलिब्रेट करते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज भी एक है, मीडिया और एंटरटेनमेंट। इसी वजह से हम जुड़े हैं फॉग के साथ और हम हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर जाफरा के साथ पूरी तरह से।
सबको इंडिया और एशिया को अमेरिका से कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा एफर्ट है और हाँ बहुत अच्छा एफर्ट है और ऐसा प्रयास चलता रहना चाहिए। कोई एक फिल्म जो आपके मित्र माधवन की पिक्चर रिलीज होने जा रही है। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? जी मैं मैडी भाई को मैं साला खड़ूस के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआएं देता हूँ कि फिल्म जो हो वो बहुत बड़ी हिट हो। मैंने फिल्म देखी है और बहुत ही अमेजिंग काम किया है। रितिका ने भी, मैडी भाई ने भी बहुत ही अमेजिंग, और जाकिर हुसैन ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। और इस तरह की महिला प्रधान फिल्में जो हैं वो बनते रहनी चाहिए और उसका असर दिख रहा है कि आज आप देखेंगे कि जैसे साइना नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा को जो पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, जो आई थिंक तीसरी रैंकिंग पे होता है वो इंडियन के उच्च नागरिक में, तो वो मिला है। और बहुत बड़ी बात है कि कहाँ आज से कुछ साल पहले लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और आज इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का वो कंपटीशन फेस कर रही हैं और जीत रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें हमारी लड़कियों को किसी ने छूट दे दी हो कि हाँ जीत जाओ, नहीं, किसी ने वो नहीं, अपने पावर से वर्ल्ड के नंबर 1 नंबर 2 लड़कियों से मुकाबला कर रही हैं और जीत रही हैं। और जैसे इंडियन बैडमिंटन और इंडियन टेनिस को वो जिस हाइट तक ले गई हैं वो सैल्यूट के काबिल है सारी। जब ये ऐसे फेस्टिवल होते हैं तो जिस तरह के ये जो फेस्टिवल लेकर आए हैं इंडिया इस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या कहना है? और बीइंग बॉलीवुड पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, आप किस तरीके से देखते हैं इस इनिशिएटिव को? नहीं, बहुत ही अच्छा प्रयास है कि हर तरह की फिल्में, और सबसे बड़ी बात कि हमारी फिल्में आज सिर्फ
देश के अंदर ही तक सीमित नहीं है, वो अमेरिका तक उसमें वो चल रहा है। एंड सिलिकॉन वैली में ये है, तो वहाँ पे जो हमारे जो देश के लोग हैं वो कनेक्ट हो पाएंगे। और ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ जैसे फिल्में रिलीज़ होती है वहाँ तो यहाँ पे 6 महीने बाद आती है, यहाँ पे होती है तो वहाँ पे 6 महीने, ऐसे नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट है ये। और बहुत अच्छा एफर्ट है, और दोनों मुल्क भी करीब आएंगे इस एफर्ट से, तो बहुत ही अच्छी चीज़। जब ऐसे फिल्म फेस्टिवल होते हैं तो आपको अपने कौन से दिन याद आते हैं, या फिर आपने कोई ऐसी फिल्म देखी फिल्म फेस्टिवल में जो आपको बेहद पसंद आई हो, कुछ शेयर करिए। नहीं, वो मतलब मैं पूना में था जब मैंने नेशनल आर्काइव था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने एक फिल्म देखी थी कम एंड सी, एक रशियन फिल्म है, तो वहाँ से मैं दीवाना हो गया था वर्ल्ड सिनेमा का। तो मैं देखता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अब आप डोंट यू थिंक कि आपको ऐसी फिल्में आप हिंदी में रीमेक बने, और ऐसी फिल्म जो आपने फिल्म देखी फिल्म फेस्टिवल में ऐसी फिल्मों का रीमेक बने, या फिर उनको उनका इनिशिएटिव आप अपने हाथ में लें? नहीं, रीमेक भी ना बने, रीमेक बने ना बने, लेकिन इंस्पिरेशन के तौर पे भी लिया जा सकता है। और इंस्पिरेशन वो होती है जिसमें आप किसी का अच्छा काम देख के अपनी ओरिजिनलिटी को सल्यूट करते हो, उसे खोजते हो। इंस्पिरेशन का मतलब एकदम से उठा के वही नहीं बना देना, मतलब कि इंस्पिरेशन का मतलब है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को तलाशें। अभी भी हिंदी सिनेमा में किसी की कमी रह गई और फोक को आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव को? नहीं, मैं डॉक्टर जाफरान और फोक को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का प्रयास जो है वो सैल्यूट के काबिल है, और आप इस तरह से प्रयास करते रहें और पूरा बॉलीवुड, पूरा इंडिया आपके साथ कनेक्ट होता रहेगा। अभी क्या देखते हैं जो हमारी हिंदी फिल्में बनती हैं उनमें क्या कमी रह गई है, और किस चीज़ की और बारीकियत अभी बाकी रह गई है? नहीं, कमी कुछ नहीं है यार, बस अच्छे आइडिया को सैल्यूट करने वाले अगर थोड़े तादाद बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो सभी कर रहे हैं। आपके आने वाले प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं? कब नजर आ रहे हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या? अभी कुछ नहीं, अभी मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ, और कुछ अलग की तलाश है। हाँ, सिलेक्ट कर रहे हैं? देखता हूँ अगर कोई अच्छा काम आएगा तभी करूँगा। थैंक यू। जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर जाफरा जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। फॉग, ये जो फेस्टिवल ऑफ ग्लोब है सैन फ्रांसिस्को का, सिलिकॉन वैली का, ये एक बहुत ही जाना माना नाम बन रहा है अब फेस्टिवल्स में। एंड आई एम ग्लैड दैट इंडिया इज़ पार्ट ऑफ इट। इंडिया, चाइना, नेपाल, एक्टर्स ऑस्ट्रेलिया से एंड अमेरिका से सब लोग सबको एक स्टेज मिल रहा है फिल्म्स करने का। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। And I feel कि this should go great. This will go very big. ये फिल्म फेस्टिवल का नाम सुनते ही आपको, क्योंकि आपने फिल्म देखी हो फिल्म फेस्टिवल तो आपको बहुत याद आती है, उसके बारे में आपके आइडियाज शेयर करना चाहते हैं? जी, फेस्टिवल्स में मैंने अभी ऑफ लेट चॉक एंड डस्टर देखी है जो रिलीज़ हुई है। एंड चॉक एंड डस्टर आई बिलीव फॉग में भी गई है। ये सैन फ्रांसिस्को फेस्टिवल में होकर आई है एंड इट्स गॉट रेविंग रिव्यूज़ ओवर देयर। जूही चावला, शबाना आजमी दोनों का काम ऑब्वियसली बात है, मतलब बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत अच्छा था। बट द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी गुड, सो दैट हैज़ रियली आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ अ फिल्म इज़ व्हाट अ फेस्टिवल फिल्म इज़। बीइंग अ पार्ट ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, किस तरीके से डॉक्टर जाफरा को आप वेलकम करना चाहिए? बिकॉज जिस तरीके का इनिशिएटिव लेकर इंडिया आए हैं जी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, बीइंग अ हिंदी एक्टर, आई वुड रियली वेलकम डॉक्टर जाफरा की वेलकम टू इंडिया, कि आप ऐसी एक चीज़ लेकर आए हैं, एक ऐसी अमेलगमेशन जहाँ पे अमेरिकन एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स, ऑस्ट्रेलियन एक्टर्स, नेपाली, चाइनीज़, जापानीज़, ये सब एक्टर्स एक ही स्टेज पे एक जगह पे मिलके कल को आगे जाके काम करेंगे, आगे जाके फिल्में करेंगे। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जी, डायरेक्ट इश्क आ रही है 19 फेब को, और ये एक बनारसी देसी लव स्टोरी है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जो कि बनारस में बेस्ड है।